طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک آزاد ملک آئرلینڈ کی، کیونکہ آئرلینڈ کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں یونائٹڈ کنگڈم کے 4 ممالک میں شمار آئرلینڈ کا خیال آ جاتا ہوگا۔ یاد رہے کہ جو آئرلینڈ یونائٹڈ کنگڈم کے ماتحت ہے اس کا نام آئرلینڈ نہیں بلکہ شمالی آئرلینڈ ہے، جہاں پر پچھلی 2 صدیوں سے آزادی کی کوششیں جاری ہیں، مگر انہیں ابھی تک آزادی نہیں مل سکی۔ چونکہ آج ہم جمہوریہ آئرلینڈ کی بات کرنے والے ہیں تو آج ہم شمالی آئرلینڈ کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ دوستو، آئرلینڈ میں انسانی زندگی کے وجود کے آثار 12,800 سال قبل مسیح کے ملتے ہیں۔ آئرلینڈ پر جن لوگوں نے سب سے پہلے آبادکاری کی انہیں آئرش کہا جاتا ہے، جن کی آمد کا اندازہ جزیرہ برطانیہ سے لگایا جاتا ہے۔ آئرلینڈ کے بارے میں کسی بھی ایسے ملک کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا جنہوں نے اس خطے پر زیادہ قتل و غارت برپا کی ہو اور اپنی حکومت قائم کی ہو۔ البتہ 1706 عیسوی کو معاہدہ اتحاد کیا گیا اور اسے برطانیہ کے ساتھ ملا دیا گیا، جس کے بعد یہ برطانیہ کا حصہ بن گیا۔ برطانیہ کے اس اتحاد سے پہلے بھی کئی صدیاں یہ برطانیہ کے حکم کی تعمیل ہی کرتا آیا تھا۔ اس اتحاد کو 2 صدیاں ہی گزری تھی کہ 1920 میں پہلا آئرلینڈ کا قانون متعارف کروایا گیا۔ آئرلینڈ کی عوام حکومت برطانیہ سے آزادی کی طلبگار پچھلے 50 سالوں سے نظر آ رہی تھی، مگر انہیں آزادی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ 24 اپریل 1916 کو آزادی کا اعلان کیا گیا۔ 6 دسمبر 1921 میں ایک معاہدہ کیا گیا جس کا تاریخ میں نام اینگلو آئرش معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے بعد پہلی آزاد آئرش سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، جسے اس وقت آئرش فری اسٹیٹ کہا جاتا تھا، اور بعد میں اس کا نام آئرلینڈ رکھا گیا تھا۔ ٹھیک 1 سال کے بعد 6 دسمبر 1922 کو آئرلینڈ کا پہلا آئین متعارف کروایا گیا اور دوسرا آئین 29 دسمبر 1937 کو متعارف کروایا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ ملک کسی بھی ملک کا حمایتی نہیں بنا۔ 1949 میں یہ ملک جمہوری حکومت کے ساتھ دنیا کے نقشے پر ابھرا اور دسمبر 1955 کو آئرلینڈ نے اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1 جنوری 1973 کو آئرلینڈ نے یورپی یونین کی رکنیت حاصل کر لی تھی۔ یہ تھی ایک مختصر سی تاریخ آئرلینڈ کے ماضی کی۔ اب ہم آئرلینڈ کے بارے میں دلچسپ و عجیب حقائق کی بات کرتے ہیں، جس میں ایک بڑا سچ یہ بھی ہے کہ جہاں پر دیگر ممالک کی آبادی میں ہر سال لاکھوں افراد کا اضافہ ہوتا ہے، وہیں پر آئرلینڈ کی آبادی میں ہر سال دن بدن کمی ہوتی نظر آتی ہے۔ 2011 کے ایک سروے کے مطابق آئرلینڈ کی آبادی 64 لاکھ کے قریب تھی، جو بڑھنے کی بجائے کم ہو کر 47,92,000 افراد تک آن پہنچی ہے۔ اپنی آبادی کے لحاظ سے یہ 2011 میں یورپ کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا جزیرہ تھا، مگر اب یہ اپنا یہ مقام کھو چکا ہے۔ عالمی رینکنگ میں آئرلینڈ کا آبادی کے لحاظ سے 123واں نمبر آتا ہے۔ اپنے رقبے کے اعتبار سے یہ مغربی یورپ کا تیسرا بڑا جزیرہ نما ملک تصور کیا جاتا ہے۔ 70,273 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ ملک پوری دنیا میں اپنے رقبے کے حوالے سے 118ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ انگریزی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 12ویں صدی کے دوران انگریزی آئرلینڈ کے لوگوں کے درمیان بولی جاتی تھی۔ 1801 عیسوی میں کنگڈم آف آئرلینڈ اور کنگڈم آف برٹین متحد ہو گئے تھے، جس کے بعد ایک نئی مملکت نے اپنا وجود قائم کیا تھا، جسے اس وقت کنگڈم آف گریٹ برٹین اینڈ آئرلینڈ کہا جاتا تھا۔ آئرلینڈ میں سینس بار کے نام سے ایک ایسا شراب خانہ ہے جو
900 ईस्वी में कायम हुआ था और आज भी कायम है, और उसी नाम से आज भी आने वालों को माजी की याद ताज़ा करवाता है। टाइटैनिक जहाज का नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, मगर ये भी जान लीजिए कि इस जहाज की तामीर का सारा काम जजीरा आयरलैंड पर ही आयरलैंड के आज़ाद होने से पहले शुरू हुआ था, और इसी जजीरे की बंदरगाह लिवरपूल से अपना पहला सफ़र का आगाज़ किया था, जो मंजिल तक न पहुंच सका और जाते जाते 1000 से ज़्यादा इंसानों को निगल गया। आयरलैंड के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि आयरलैंड में आपको कोई भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर सांप ना होने की 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो आयरलैंड के मौसम का ठंडा होना है, और दूसरा आयरलैंड की सरहद का किसी भी तरह से किसी भी मुल्क से ज़मीनी रास्ते का ना होना है। दोस्तों, 1845 से 1852 तक आयरलैंड में एक ऐसा कहत पड़ा था जिसने उस वक्त की आयरलैंड की 80 लाख अफराद की आबादी को कम करके 65 लाख कर दिया था। यानी इन 7 सालों में कहत साली से 15 लाख अफराद मौत की वादी में चले गए थे। आयरिश आयरलैंड की कौमी जुबान है, मगर आयरलैंड की सिर्फ 12% आबादी ही ऐसी है जो इस जुबान का सही तरह से इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि इंग्लिश ने इस जुबान को आगे आने का मौका ही नहीं दिया। अलबत्ता सरकारी जुबान का दर्जा इंग्लिश और आयरिश दोनों को ही हासिल है। इन दोनों जुबानों के अलावा पोलिश, शेल्टा, स्कॉट्स और योला भी कदरे कम तादाद में बोली जाती हैं। आयरलैंड की आबादी में 82.2% तादाद सफ़ेद आयरिश लोगों की है, 9.5% दूसरे सफ़ेद लोगों की, 1.7% एशियन लोगों की, 0.4% चीनी लोगों की, और बाकी तादाद ऐसे लोगों की है जो दीगर इलाकों से आकर आयरलैंड में बस चुके हैं। डबलिन मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा और कदीम शहर होने का एजाज़ रखता है, जो अपने अंदर 7 लाख से ज़्यादा अफराद को समोए हुए है। आयरलैंड की करेंसी को यूरो कहा जाता है। 1 यूरो पाकिस्तानी 138.40 रुपयों के बराबर है। आयरलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे है। दोस्तों, आयरलैंड पाकिस्तान से 6514 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। आयरलैंड में अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको आयरलैंड के नंबर से पहले आयरलैंड का कंट्री कोड +353 लगाना पड़ेगा। आयरलैंड का डोमेन नेम .ie है। आयरलैंड का मुकम्मल नाम जमहूरिया आयरलैंड है। आयरलैंड की शहरियत के लिए आपको आयरलैंड में पैदा होना ज़रूरी नहीं। अगर आपके दादा या आपके वालिद दोनों में से कोई एक आयरलैंड में पैदा हुआ हो तो आपको आयरलैंड की शहरियत बआसानी मिल जाएगी। दोस्तों, आयरलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां तजदीफ करने वाले को 25,000 यूरो तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको तजदीफ का नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि तजदीफ से मुराद खुदा और इसके पैगंबरों की तौहीन करना होता है। बहुत से ममालिक में अभी तक ये कानून नाफिज है। इस्लामी ममालिक में इस कानून को तौहीन रसालत कहते हैं। दोस्तों, आयरलैंड के अगर मज़ाहत की बात की जाए तो आयरलैंड की आबादी का 78.3% लोग रोमन कैथोलिक फ़िरके के मानने वाले हैं, 4.2% प्रोटेस्टेंट, 1.3% मुस्लिम, 6.1% दीगर मज़ाहब के मानने वाले हैं, जबकि 10.1% आबादी ऐसे लोगों की है जिनका कोई दीन ईमान नहीं, यानी वो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। गायलिक, फुटबॉल और हर्लिंग आयरलैंड की विरासती खेलें हैं, जबकि बॉक्सिंग, रेसलिंग, हैंडबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ, रग्बी और हॉकी दीगर शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। आयरलैंड में तालीम की तरफ पिछली 1 सदी से तवज्जो दी जा रही थी। 2003 के अदादोशुमार के मुताबिक आयरलैंड में तालीम की शरह 99% थी, जो अब बढ़कर 100% हो चुकी है।
आयरलैंड के अगर महल्ले वकूअ की बात की जाए तो आयरलैंड एक जजीरा है जो शुमाल मगरबी यूरोप में मौजूद है, जिसकी ज़मीनी सरहद किसी भी मुल्क से नहीं मिलती। सिर्फ शुमाली आयरलैंड जो अभी तक बरतानिया के कब्जे में है, इसी जजीरे पर मौजूद है, जो बरतानिया का मुल्क होने की वजह से अपनी एक सरहद आयरलैंड से मिलाए हुए है। 2016 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आयरलैंड फीकस मजमूई आमदनी के हवाले से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क था, जिसमें फीकस मजमूई आमदनी 62,000 अमेरिकन डॉलर थी। आयरलैंड में एक खानदान के औसतन 4 अफराद होते हैं। एक मियाँ बीवी और 2 बच्चों पर ज्यादातर खानदान मुश्तमिल होते हैं। एक बात जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि 1998 से पहले शुमाली आयरलैंड के ज़्यादातर इख्तियारात आयरलैंड हुकूमत के पास थे, जिसे एक मुआहदे के बाद इख्तियारात शुमाली आयरलैंड और बरतानिया को दिए गए थे ताकि मुल्क में सिविल वार का खात्मा हो। आयरलैंड में पाए जाने वाले हुक लाइट हाउस को यूरोप बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना लाइट हाउस होने का एजाज़ हासिल है। आयरलैंड बिजनेस के हवाले से 2013 में दुनिया का सबसे पहले नंबर पर आने वाला मुल्क था। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें गूगल, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट आती हैं, सब ने आयरलैंड में ही वसी पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। ज़राअत, सनअतकारी और टेक्नोलॉजी की वजह से आयरलैंड पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए है। आयरलैंड किस कदर खूबसूरत है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2016 में 1,03,19,000 गैर मुल्कियों ने आयरलैंड का विजिट किया था। सियाहों की ये तादाद आयरलैंड की आमदनी के इजाफे की एक बड़ी वजह है, जिससे लाखों लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। आयरलैंड के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि आयरलैंड के लोगों के नामों में ज्यादातर मैक और ओ लफ्ज का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये लफ्ज आपको हर 8 आदमी में एक के नजर आएगा। आयरलैंड में दुनिया की 5वीं बड़ी जिंक की कान है और ये यूरोप की पहले नंबर पर शुमार की जाती है, और यहाँ से निकला जाने वाला जिंक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का होता है। दोस्तों, आयरलैंड में टेक्नोलॉजी की सनत पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाया गया है, इसीलिए टेक्नोलॉजी की ज्यादातर कंपनियां आयरलैंड से अपना आगाज करके पूरे यूरोप पर छा जाती हैं। आयरलैंड में इंसानों की तादाद से ज्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी अक्सर लोगों के पास 2-2 मोबाइल फ़ोन का होना है। मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल ही शायद आयरिश लोगों की नज़र की कमज़ोरी की एक बड़ी वजह बन रहा है। आपको हर 10 में से 6 लोगों के चेहरों पर ऐनकें लगी नज़र आएंगी। दोस्तों, क़यामत की जिन बड़ी बड़ी निशानियों का जिक्र हमें इस्लामी किताबों से मिलता है, उनमें से एक हम जिन्स फरिश्तों की आपस में शादी भी करना है। दुनिया के चंद एक ममालिक की तरह आयरलैंड में हम जिन्स फरिश्तों को शादी करने के लिए कानूनी हकूक हासिल हैं, जो 2015 में पास किए जाने वाले एक बिल के बाद से शुरू किए गए थे। आयरलैंड के बारे में एक बहुत ही घटिया बात यह भी है कि आयरलैंड की 70% से ज़्यादा औरतों के गैर मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं। इन औरतों में शादीशुदा औरतें भी शामिल हैं, यानी अगर आप आयरलैंड की दुल्हन बिहाना चाहते हैं तो 99% मुमकिन होगा कि आपके साथ धोखा हो रहा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस को भी एक आयरिश बाशिंदे ने ही डिजाइन किया था। आयरलैंड के बासी अगर आयरलैंड के अलावा किसी मुल्क में रहना पसंद करते हैं तो वो मुल्क अमेरिका है, जहां पर आयरलैंड के ज्यादा लोग रहाइश रखे हुए हैं। बहुत से ममालिक की मुश्तरका मलका एलिज़ाबेथ डोम आयरलैंड की मलका नहीं है और ना ही इनका कोई हुक्म यहाँ पर चलता है। आयरलैंड एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। दोस्तों, ये थी आयरलैंड के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक बेहद खूबसूरत वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की बड़ी वजह बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अहबाब के साथ व्हाट्सएप
اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے انہیں بھی ان قیمتی معلومات سے آگاہ کریں اور انہیں ہمارے اس جانی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنے کا لازمی بول دیں۔ آئرلینڈ کے بارے میں رہ جانے والی باتوں کا تذکرہ ہم آئرلینڈ پر بنائی جانے والی اگلی ویڈیو میں کریں گے، جس میں ویزے کے حصول اور تفریحی مقامات کا بھی بتایا جائے گا۔ دوستو، میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ میری ویڈیوز میں اگر کوئی کمی یا کوتاہی ہوتی ہے تو بذریعہ کومنٹ مجھے بتا دیا کریں، میں جلد سے جلد اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے اس دوست کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔